पहले यूज होता था CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। नाउअडेज इसका जो है वो CKD, ठीक है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज वी विल डिस्कस ब्रीफली। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये हिंदी है, तो वी विल डिस्कस द कॉजेस, डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। So what is the definition of acute kidney AKI? Anybody? Acute है ना, तो acute में क्या आता है? Next slide. Acute or abrupt decline in the function of kidney that result in a decline in GFR and increase and dysregulation of extracellular volume and increase serum creatinine. This is a sudden abrupt deterioration of the renal function and dysregulation of extracellular volume and electrolytes. It is characterized by either decrease in the what is GFR, glomerular filtration rate. It is very important. Every time when you get a patient with renal failure or CKD or AKI, you have to calculate the GFR. So remember it, GFR. It is characterized by a decrease in the urine output and increase in the serum creatinine. Serum creatinine will be increased and urine output. There are two terms used for the urine output: oliguria and anuria. So, what is oliguria? What is oliguria? Oliguria, decrease in the urine output. ठीक है. Anuria, no urine. And you must differentiate between the anuria and retention of urine. दोनों में यूरिन नहीं आ रहा होगा, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन और उसमें क्या डिफरेंस होगा? ब्लैडर एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन। सर रिटेंशन ऑफ यूरिन में ब्लैडर जो है ना आपका फुल होगा, यूरिन से ब्लैडर फुल होगा, यूरिन बन रहा है लेकिन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन ऑफ यूरिन. Anuria, there is bladder is not palpable and there is no urine output, so there is a renal failure. So okay, retention of urine में भी यूरिन आपको renal failure मिल सकता है, लेकिन it is difference. ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पता चलेगा. जब आप हाउस जॉब करेंगे ना, तो बच्चा या बड़ा आएगा तो मुझे पेशाब नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे? पहले आप उसका ब्लैडर चेक करेंगे कि ब्लैडर है तो टेंशन ऑफ यूरिन है, ब्लैडर पैल्पेबल है. अगर यूरिन वो नहीं है तो फिर एनीमिया है. AKI flex, AKI affects the 55% of only 5% of hospitalized children. Whatever the cause, AKI कोई emergency में पेशेंट होगा, maybe sepsis, maybe gastroenteritis, maybe malaria, maybe anything. The ICU patient who they develop the AKI, or this is the acute one. थोड़ा सा पता है.
के 5% हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन में होते हैं और 20 to 30% ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन ICU. This is a critical condition, so they should be admitted in ICU, PICU, pediatric ICU, जो आपने देखा है वहाँ पर हमारा. So 20 to 30% of children admitted in ICU or overall 5% of hospitalized children they develop the acute kidney injury. आगे बढ़ो. Okay. The morbidity among the neonate is high, about 32% या 31%, और जो younger children हैं उनमें 27% है. So and they need dialysis. So what is the difference between the morbidity and mortality? Anybody? Morbidity complication and mortality. Mortality is the death. Morbidity is the condition in which life is saved, but it is with limited functions of life. ठीक है, उसको डेबिलिटी क्या है? जैसे अगर किसी को सीरिया होगा, वो सीरिया में सर्वाइव कर दिया उसने, लेकिन वो उसकी डेफिसिट रह गया. तो दिस इज द मॉर्बिडिटी. So every disease has got mortality rate and morbidity rate. ठीक है, तो morbidity rate is higher in younger children. Kidney function depend upon तीन चीजें होती हैं. एडिक्वेसी ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी. ब्लड सप्लाई टू किडनी शुड बी एडिक्वेट. अगर एडिक्वेट नहीं होगा तो एक होगा और वो कहलाएगा प्री-रीनल काज. ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट बच्चे का इंटेक नहीं है, तो ये प्री-रीनल काज हो जाएगा. फिर ये सेकंड नंबर पे इंटीग्रिटी ऑफ रीनल पैरेन्काइमा. अगर इफ देयर इज अ रीनल पैरेन्काइमा डैमेज ड्यू टू एनी डिजीज लाइक glomerulonephritis, acute glomerulonephritis, any condition which causes the damage to renal parenchyma, so it will cause the renal dysfunction. And और फिर एक पोस्ट रीनल होता है, जो मैंने आपसे बात की थी अभी, कि पेटेंसी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट पोस्ट रीनल. रीनल पैरेन्काइमा सही है, ब्लड सप्लाई भी सही है किडनी का, बट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ऑब्स्ट्रक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट जो उसके ट्रैक्ट है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इट विल लीड द पोस्ट रीनल. अब आपने अगर कोई पूछे तो एक और पोस्ट रीनल समझ में आएगा, सिंपल है. ठीक है, आगे चलें. ये कुछ ये कुछ क्राइटेरिया है. तो इसमें जो फॉर डायग्नोसिस ऑफ AKI डिफाइंड एज एनी ऑफ द फॉलोइंग: increase in the serum creatinine by more than 0.3 milligram per deciliter within 48 hours. क्योंकि this is acute, तो अगर 0.3 से नॉर्मल है क्रिएटिनिन, अगर उससे बढ़ जाता है और विदिन 48 आवर्स बढ़ जाता है. एक बच्चा है जिसने इमरजेंसी में था, उस वक्त इसका सीरम क्रिएटिनिन 0.2 था. 48 आवर्स के बाद मोर देन 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, 1 हो गया, तो इट इज ड्यू मोर देन 1.5 टाइम्स baseline within known presented to occur with the period 7 days. 7 days से हो रहा है और 1.5 से ज़्यादा है, तो ये भी क्राइटेरिया में आता है. और
इसके साथ वॉल्यूम 0.5 ml पर kg पर आवर और 6 आवर अगर कम हो जाए तो 0.5 ml से भी कम हो जाए पर मिनट पर kg पर आवर। तो ये आवर्स की हम कैलकुलेशन करते हैं और यूरिन आउटपुट पे डिपेंड करता है कि कितना यूरिन आ रहा है। इसके हमने आपको GFR बताया था कि GFR मस्ट है, एनी एडिक्टेड पेशेंट का GFR होना चाहिए, क्रिएटिनिन क्लियरेंस होना चाहिए। तो इट विल से कि व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ acute kidney disease। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ AKI। वैसे जो ट्रांजिएंट स्टेज होता है वो एनी डैमेज की वजह से यूजुअली इंप्रूव होता है। एक होता है कि थोड़ा परमानेंट डैमेज होता है लेकिन वो इतना जल्दी नहीं करता। आगे चले, हाउ ट्रांजिएंट लास्टिंग लेस देन 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स से कम है वो सही हो जाता है और परसिस्टेंट है लास्टिंग मोर देन 48 आवर्स। ये हाउ टू कैलकुलेट GFR। ये बेटा इसकी पिक्चर ले लो। अब GFR कैसे करते हैं, दो तीन चीजें होनी चाहिए उसमें। शॉर्ट्स का फार्मूला है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज K इनटू है हाइट डिवाइडेड बाय सेल क्रिएटिनिन। तो इस वे में आप बच्चे का हाइट मालूम होना चाहिए, क्रिएटिनिन का लेवल मालूम होना चाहिए, तो यू कैन कैलकुलेट द GFR। आगे चलिए, रिवाइज भी आगे शॉर्ट्स फार्मूला। तो इसमें भी आप देखेंगे एंजाइमेटिक सेट क्रिएटिनिन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये अलग आपको समझ में नहीं आएगा। तो बात ये है कि आप उसको क्रिएटिनिन क्लियरेंस और GFR जरूर मालूम करना है। इन व्हिच देयर इज ए 0.43 फॉर ऑल एजेस। तो बच्चों के लिए अलग होता है, न्यूनेट के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। तो क्रिएटिनिन GFR इज द मस्ट। आगे नेक्स्ट, अब आपको बताया था कि AKI की एक्यूट किडनी डिजीज की प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। आपसे बता दिया कि ओलिगोयूरिया और एनीमिया। हमेशा एनीमिया नहीं मिलता, ओलिगोयूरिया मिलता है। और कभी कभी हाइपरटेंशन होता है, बच्चों में भी हाइपरटेंशन होता है। तो एवरी चाइल्ड द ब्लड प्रेशर शुड बी मेजर्ड बाय इन्फेंट कफ, चाइल्ड कफ। बड़े से नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो एवरी वार्ड शुड हैव, एवरी OPD पीडियाट्रिक OPD शुड हैव पीडियाट्रिक कफ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, मॉनिटरिंग में पता चल जाता है, लेकिन आइडियली वो भी करेक्ट नहीं होता। तो यू शुड मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ चिल्ड्रन। और दूसरा ये वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड, हाउ विल यू कंसीडर वॉल्यूम ओवरलोड? अगर वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो क्या होगा? ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड होगा, एडिमा होगा, जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके साथ एक पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, असाइटिस हो सकता है। तो दिस इज द वॉल्यूम ओवरलोड। ठीक है, देन दिस इलेक्ट्रोलाइटीमिया। तो एक्यूट किडनी डिजीज में इलेक्ट्रोलाइट को क्या क्या हो सकता है? दिस इलेक्ट्रो को हाई, सोडियम को क्या होगा, पोटेशियम को क्या होगा, फास्फेट को क्या होगा, तो इसको कहते हैं कैल्शियम को क्या होगा, PTH को क्या होगा। तो दिस इज द डिसरेगुलेशन हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर आगे क्लियर हो जाएगा। और एक्यूट किडनी इंजरी में हाइपरकैलेमिया इज वेरी डेंजरस। और हाइपरकैलेमिया इज नॉट responding to treatment need dialysis।
ठीक है। और इसके यूरीमिया किडनी फेलियर हो और अल्टर्ड सेंसोरियम हो तो उसको यूरीमिया कहते हैं। तो ब्रीफली जो प्रेजेंटेशन है ओलिगोयूरिया, एनुरिया, हाइपरटेंशन, वॉल्यूम ओवरलोड, डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया एंड यूरीमिया, ये जब भी आप पेशेंट देखेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और उसको देखेंगे। नेक्स्ट, अब आपको लगा कि इस बच्चे को क्या है तो क्या टेस्ट करेंगे? पहले तो आपने देख लिया काज क्या होते हैं, प्रीरीनल, रीनल और पोस्टरीनल। देन आपने देखा कि उसकी प्रेजेंटेशन इसमें कौन सी है, ओलिगोयूरिया है, एनुरिया है, ओवरलोड है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और यूरीमिया है, अल्टर्ड सेंसोरियम है। तो देन आप यू विल ऑर्डर हेमेटोलॉजी सीबीसी विद पेरिफेरल सीनियर, ठीक है। तो सीबीसी में क्या देखेंगे? मलेरिया के लिए देखेंगे, लीपीमिया के लिए देखेंगे और प्लेटलेट काउंट देखेंगे। इसमें ब्रैकेट में लिखा है HUS, व्हाट इज HUS? हेमोराइटिक यूरिनिक सिंड्रोम। ये बच्चों में कॉमन है। हेमोराइटिक एनीमिया मिलेगा, हेमोलाइसिस का एविडेंस मिलेगा, ब्रैकेट काउंट आपको कराना पड़ेगा, यूरिनिक होगा, बच्चा अंडर सेलिंग होगा और सिंड्रोम उसमें आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा और देयर में भी वॉल्यूम ओवरलोड, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलेगा, यू कैन मेक द हेमीप्रिया एज वेल, ठीक है। तो उसके बाद क्या आपने कराना है? मलेरिया काजल का एक है, लीपीमिया काजल का एक है और डिसेंट्री, ब्लड डायरिया, शिगिलोसिस, इट काजल का एक है। तो उनको देखने के लिए फिर बायोकेमिस्ट्री कराएंगे। तो वर्ड यूज होता है UCE, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इस सबको देखना है कि यूरिया कितना बड़ा हो रहा है। कभी हम DUA करते हैं, जैसे देखते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन भी देखना है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखना है कि कहाँ तक है। तो इसके साथ आपने हाइपरकैलेमिया, हाइपरक्लोरीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और लो बाइकार्ब एसिडोसिस। एक है एसिडोसिस इज कॉमन एंड दैट if there is a hyperkalemia, acidosis which is not responding to normal response, if there is not refractive treatment, it needs dialysis, ठीक है। ब्लड कल्चर, बिकॉज सेप्सिस यंगर बच्चों में, न्यूनेट में सेप्सिस का एक है तो ब्लड कल्चर भी कराना लाजमी है, उसको ट्रीट करना भी लाजमी है। यूरिन एनालिसिस कल्चर यूटीआई को देखने के लिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए। तो एनीबॉडी यूटीआई में क्या मिलेगा, यूरिन में क्या मिलेगा? यूरिन के सेल्स आपने करा तो लोग कहते हैं यूरिन लिया करवा लो, यूरिन कल्चर करवा लो, तो क्या मिलेगा? ठीक है। तो यूरिन का कलर देखते हैं, यूरिन में पीएच देखते हैं, यूरिन में नाइट्रेट्स देखते हैं और यूरिन में ब्लड देखते हैं, आरबीसी देखते हैं और उसके साथ डब्ल्यूबीसी देखते हैं। अगर वो होगा तो यूरिन डू द यूरिन कल्चर। तो इसमें ये चीज़ें देखनी है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या मिलेगा आपको? कास्ट मिलेगी, आरबीसी कास्ट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्ट, बट द आरबीसी कास्ट इज द significant in the glomerulonephritis, like acute glomerulonephritis, or in the acute glomerulonephritis there is a presentation is always volume overload. Then the urinary sodium, phosphoratry and other sophisticated tests may be needed for the management, क्योंकि उसको अपने पॉसिबिलिटी और उनको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, but remember, creatinine is not is a poor indicator of renal function, because other जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती, लेकिन अगर ये आप theoretically याद कर लें तो
इसमें जो है ये सारी चीज़ें होती जो हमारे पास होती नहीं है, लेकिन क्रिएटिनिन आपको इतना इंडिकेट नहीं करता है, सिम्टम पे इंडिकेट करता है। जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे, फिर उसको मॉनिटर करेंगे, तो समटाइम्स ये होता है कि क्रिएटिनिन आज नॉर्मल है, कल बढ़ गई है, तो फिर उसको इंडिकेट करते हैं। अगर एक दफ़ा आपने टेस्ट करा दिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है, आप कहेंगे तो रिजल्ट में जो है, तो उसको सीरियल मॉनिटरिंग से आपको make the diagnosis कि इसको क्या है। यूरिन में देखें, यूरिनल AKI में यूरिन एनालिसिस में आपको नॉर्मल मिलेगा, और ग्लोमेरुलर इफेक्ट्स में मैंने यही बात की थी कि RBC कास्ट मिलेगा और प्रोटीन यूरिया मिल सकता है। UTI में पाइरूरिया फर्स्ट इन द यूरिन मिलेगा, WBC यूरिन में मिलेंगे, और ग्रेनुलर कास्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये कास्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें ग्रेनुलर डिफरेंस मिल सकते हैं। ATA का मतलब है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या मिलेगा आपको, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 0.10 से कम मिलेगी। ठीक है, तो ये इंडिकेटर है ATN ट्यूबुलर नेक्रोसिस। देन इंट्रिंसिक ये फैक्टर होता है जो भी आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इसमें ये टेबल है, इसमें कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मोर देन 1 है तो क्या हो सकता है, और इसमें ये चीज़ें हैं जो कि आपने इसको देखनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है, सीरम जो है वो ये देखना है, क्रिएटिनिन देखना है, यूरिया देखना है, तो इसको आपने इंटरप्रिटेशन करना है कि तो क्या फर्दर हो सकता है। नेक्स्ट, अब इन्वेस्टिगेशन आपने देख ली, क्या होगा UCE, इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लोमेरुलर RBC का ब्लड प्रेशर जरूर देखना है। अच्छा देखिए, रेडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अल्ट्रासाउंड हम हर बच्चे का करते हैं KUB, इंटीग्रेटर, उसको साइज देखते हैं, मीटर साइज। समटाइम्स वी गेट डिक्रीज इन मीटर साइज, हाइपोप्लास्टिक किडनी। उसके साथ आप देखते हैं कि उसके साथ जो पैरल कैनल चेंजेस क्या है। इफ यू गो थ्रू रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो वो कहते हैं ग्रेड 1 पैरल कैनल चेंजेस है, ग्रेड 2 पैरल कैनल चेंजेस है, ग्रेड 3 है, तो इट मींस लेने का पैरल कैनल। इसके साथ आपने अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, तो आर्टिरियल वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस के लिए, और एक और अगर हाइपरटेंशन हो तो डॉपलर करते हैं रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के लिए। रीनल आर्टरी स्टीनोसिस इज द कॉमन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन, तो उसके लिए लाजमी देखते हैं। इसके साथ एक्सरे टेस्ट करते हैं, फ्लूइड ओवरलोड में बताया है, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो आपको लीवर डिफीजन हो सकता है, एंड यू कैन गेट द पल्मोनरी एडिमा एज वेल। एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है, या कार्डियोमैग्नेटिक मिल सकती है। CT MRI इन एडवांस केसेस हम कर सकते हैं। और इसके साथ सीरोलॉजी, रीनल बायोप्सी इन सिलेक्टेड केस। acute में यूजुअली इज नॉट required renal biopsy, but in CKD most of time, in 90% cases, you need renal biopsy to see the glomerular damage and all of CKD. ठीक है, तो सीरोलॉजी या ट्रीटमेंट ऑफ AKI थोड़ा बताओ।
ट्रीटमेंट AKI क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, डिपेंड अपॉन द काज। आपने प्रीनेटल है, हेमरेज हो रही है, कहीं मैसिव हेमरेज हुई है, कहीं वॉल्यूम डिप्लीशन हुई है, डायरिया वोमिटिंग हुई है, तो आप उसको फ्लूइड विटनेस करेंगे। और जो अगर वॉल्यूम ओवरलोड है, देन यू रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड, उसमें आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लूइड से और एंटीबायोटिक से। अगर कोई सेप्सिस में है तो अच्छा वाला एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन आप उसको नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। Can anybody name the nephrotoxic drugs? कौन सी nephrotoxic drugs है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। जेंटामाइसिन पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, अब जेंटामाइसिन कम हो गया, तो नेफ्रोटॉक्सिक। अमाइनो ग्लाइकोसाइड, NSAIDs, ठीक है। Likewise, there are many drugs which causes the AKI। तो अगर आप AKI पेशेंट आ जाएगा तो आप एंटीबायोटिक या मेडिसिन वो देंगे जो लेस नेफ्रोटॉक्सिक होगा, और लेस नेफ्रोटॉक्सिक के लिए आप क्लियरेंस करके उसका डोज एडजस्ट करना पड़ता है। सो दिस इज मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जैसे AVN, देखिए अगर जनरलाइज एडिमा के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है, पेरियार्टिक पॉपुलेस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कोई बच्चा देखा है आपने? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज एडिमा और जनरलाइज एडिमा का हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, fetal edema, ascites. Is in this way acute glomerulonephritis present with edema, generalized edema, but there is a hypertension in AGN and there is a hematuria in AGN. AGN का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ओवरलोड है तो उसको करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 क्लास बताए थे आपको, अगर पोस्ट रीनल कार्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन है, पोस्टीरियर यूरेथ्रियल वाल्व है, या रिफ्लक्स है, और पेशेंट का जो है वो मिलिटरी पेपेबल है, लेकिन ये AKI में जा रहा है, तो आप उसकी रिटेंशन रिलीव करेंगे, उसको कैथेटराइज करेंगे या फिर सुपरामेंट्रिक कल्चर करेंगे, उसको उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करेंगे, तो उसके रीनल फंक्शन इंप्रूव हो जाएंगे, और फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो फर्दर इन्वेस्टिगेट के लिए अगर CKD के कारण आ रहे हैं तो उसको CKD में आपको बता दो कि और कौन से आपको अल्ट्रासाउंड, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड CT वो क्या करानी जाएंगे, लेकिन अगर CKD है तो उसके साथ और रीनल बायोप्सी वगैरह भी आपको करनी पड़ेगी। आपने उसके ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसके पल्स देखते हैं, और अर्ली एंड एग्रेसिव फ्लूइड रिसससिटेशन करनी है, वॉल्यूम और हाइपो वॉल्यूम का ट्रीट करना है, और सेप्सिस का ट्रीट करना है, और आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं 0.9% इफ देयर इज नीड, और वेलोप्रेसिन भी इस्तेमाल करना है फॉर दी आगे चलो। ओवर हाइड्रेशन, अगर कोई आपके वॉल्यूम डिप्लीशन है तो आपको ओवर हाइड्रेशन नहीं करना है, बस उसको बैलेंस रखना है, फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट को। आगे ये मेटाबॉलिक कुछ कंडीशन होती है जिनको टारगेट रखना है कि ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, एनर्जी कंजप्शन कितनी होनी चाहिए, इसके साथ जो इनकी बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना होता है, ताकि किडनी का फर्दर आपको बता दें कि नेफ्रोटॉक्सिन्स नहीं देने हैं, और उसका जो ये इस लेवल पे आपने उसको किडनी को और उसको मेंटेन करना है। और NSAIDs के लिए कहा करके अवॉइड करने हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड अवॉइड करने हैं, और उनको उसका डोज कम करना है। आगे चलो। लेकिन ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाइपरकेलेमिया इज वेरी डेंजरस। तो
रेयरली इन हाइपरकाइनेमिया ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे। अगर हाइपरकाइनेमिया है तो आईसीयू में आपने इसका ईसीजी मॉनिटर लगाना है, ठीक है। हाइपरकाइनेमिया कैन किल द चाइल्ड, ठीक है। तो हाइपरकाइनेमिया को देखना है, इसके साथ कैल्शियम ग्लूकोज लेना है। तो ये अल्वेज जो है इसमें कैल्शियम कम होता है और एक्सपोज देना है सेलाइन पेशेंट। इसके साथ आपने सल्ब्यूटामोल अगर जो उसका ट्रीटमेंट है हाइपरकाइनेमिया का, सल्ब्यूटामोल या बेटाडीन से नेबुलाइज करेंगे तो उसका लेवल कम हो जाएगा। आई में कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो कम हो जाएगा। तो इस तरह से सोडा पैक या सोडा पैक आप देंगे तो इनका लेवल कम हो जाएगा पोटेशियम का। और समटाइम्स जो है एक ओरल एजेंट होता है कैक्सीनेट, वो यूज करते हैं। ये कैक्सीनेट लिखा हुआ है, तो ये ओरल होता है, इसको ओरल दिया जाता है। डिक्रीज पोटेशियम लेवल। अगर इनमें से हाइपरफास्फेटिडिया, हाइपरटेंशन हो और हाइपरकाइनेमिया अनट्रीटेड हो, रिफ्रैक्टरी हो तो इसे डायलिसिस में जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रीनल रिप्लेसमेंट की कुछ या डायलिसिस की आप इंडिकेशन है। बच्चा पल्मोनरी एडिमा है, हार्ट फेलियर में है, पर्सिस्टेंट हाइपरटेंशन है, रिफ्रैक्टेड टू सीवियर मेटाबॉलिक एक्सीडेंस है और सीवियर हाइपरकाइनेमिया है, यूरेमिया है, इनफॉर्म ड्रग मेटाबॉलिज्म है और इंजेक्शन ऑफ ड्रग पॉइजन। तो आपने मस्ट आपने रीनल रिप्लेसमेंट करनी है विद डायलिसिस। बच्चों में कौन सी डायलिसिस करते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो हीमोडायलिसिस करते हैं या फिर कंटिन्यूअस हीमोडायलिसिस। बेटा बातें नहीं करो, थोड़ी देर बस लगेगी, थोड़ा सीकेडी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप घूम कर रही हो, खून कम हो रहा है आपका, कैल्शियम भी कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की में से क्या है? एक क्या है, इज साइलेंट किलर और प्रिवेंटेबल और अर्ली रिकग्निशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने अर्ली रिकग्निशन नहीं करी तो डेंजर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आगे अच्छा देखिए सीक्रेट थोड़ा सा पढ़ूंगा आप कुछ पढ़ेंगे। किडनी डिजीज है वो इंफीरियर है, ग्रेटो लास्ट रीनल फंक्शन इसके आगे इसके काजेज है, स्टेजेस है, आगे चलो प्रीवेलेंस लिखा हुआ है, आगे चलो हो गया। ये गाइडलाइन है, आप इसको चलाते हैं, इसको पिक्चर देखते हैं जो नहीं होगा आज का हमने स्टडी के और उसमें रीनल बायोप्सी से इसको थेरेपी दी जाती है और ऑलवेज ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, जेनेटिक कॉज हो सकता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है। आगे चलो ये आप इसके स्टेजेस हैं, ये स्टेज 1 स्टेज 3 स्टेज 1 में ये स्टेज 2 में माइग्रेन और इसमें लास्ट स्टेज में किडनी फेलियर। आगे चलते हैं सेम है। आपको यूरिन एनालिसिस करना है, यूरिन ट्रीटमेंट करना है, अल्ट्रासाउंड करना है और एमसीई करना है आप सर्जन के लिए और उसके बाद रीनल बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड जो टाइप ऑफ रीनल नेफ्राइटिस होगा उसका ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू।